Good evening, friends. Welcome back to my channel. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster, Magnified Healer, and a Psychic. Before starting the video, first of all, I would like to say thank you to one of my subscribers. Her name is Dimple, and she inspired me so much to share my knowledge. She called me and she appreciate so much, and I'm so overwhelmed and I'm so thankful to her. एंड आई एम थैंक यू ऑल आप लोगों ने मेरा वीडियो लाइक किया एंड यू ऑल मोटिवेट मी फॉर गुड वर्क नाउ मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ 7 साइंस ऑफ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। सो बहुत सारी जो स्पिरिचुअल लोग हैं जो इस पाथ पर आए हैं, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है और जो इस जर्नी में ऑलरेडी हैं, उनको बहुत सारे साइंस दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं और ऐसे लगता है जैसे हम यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो स्वामी विवेकानंद की का कोटेशन में कोट करना चाहूंगी। ही सेड दैट यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट। None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. So he said it correctly that आपको कोई नहीं सिखा सकता है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। आपको खुद से ही आपकी सोल आपको सिखाती है और ना कोई आपको इंसान स्पिरिचुअल बना सकता है। इट्स योर ओन सोल. So power of free will is a wonderful gift given to you by God. Through this power, you can become a channel for Reiki. With this power, you can connect with the divine angels of God. It is this blessing that you choose to make wiser decisions in life and ascend to a better dimension. But it all depends on your choice of activating your free will and driving the same in the right direction. You may choose to do it with Reiki, angel therapy, law of attraction, power of higher consciousness, tapping in your right brain and so on. स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए, अपनी फ्री विल को ढूंढने के लिए, अपनी सोल पर्पस ढूंढने के लिए आप लोग बहुत सारे रास्ते हैं स्पिरिचुअलिटी जो आप चूज कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन remains how you shall understand that you are going on the right path. How you may know that you are building your connection with the universe, God, or source of divine power. What tells you that your prayers are being heard and they are into the process of manifestation? If you're also willing to find out the same, then keep on listening to it to find the 7 clear signs of spiritual alignment, which are motivating force to tell you that you are charging ahead, right? So 7 clear signs, what are they? Just in case you are unable to notice the coming up signs of spiritual alignment, does not mean that you are not smart enough to do so. It is just sometimes you are in too much chaos to notice such signs that God sends your way to tell you that keep it up, child, I'm with you. This video intends to clear that chaos and bring you peace and light. So number 1 sign is quick fixes, which are very common signs, are more regular. These are the small things you ask for and voila, the magic happens right away. बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम में होते हैं, हमारा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है और हम जस्ट अपने माइंड में भगवान को याद करते हैं कि काश भगवान ऐसा हो जाए, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड इन नो टाइम आप देखते हो कि अचानक से कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाता है। सो यू आस्क फॉर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड योर आईज आर वाइड ओपन even before you allow. You wish to get a ride to your work and someone offers you one. You pray for a good professional domestic help and you get what you are looking for. You are running out of money and you realize that your paycheck has arrived early. So such things tell you that you are easily manifesting small things, which indicates that you are becoming more comfortable with the law of attraction. ये सबसे बड़ा रीजन है। मान लीजिए आपको, जैसे मैंने बताया, इंग्लिश में जैसे बताया, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स
हिंदी मीडियम भी है, हिंदी बोलते हैं, तो मैं हिंदी में भी बता देती हूँ कि बहुत बारी ऐसा होता है कि हम ऑफिस के लिए निकलते हैं और हमें कुछ व्हीकल नहीं मिलता है, कुछ मिलता नहीं कम्यूट करने के लिए, तो हम बस मन ही मन सोचते हैं कि भगवान प्लीज कुछ ना कुछ हमें जल्दी से मिल जाए, ऑटो ही मिल जाए, बस ही मिल जाए, और वो एकदम से आ जाता है। तो स्मॉल स्मॉल चीजें हैं जो हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो जब आपके साथ ये होने लगे, तब आप समझ जाइए कि आप स्पिरिचुअलिटी में अलाइन हो रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से आप अलाइनमेंट में हैं। सेकंड है कि द फेमस नंबर सीरीज, दैट इज द foremost notice sign. You see numbers in series everywhere. It could be your watch, an apartment, number plates on automobiles, books, emails, bills and so on. मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं हर बारी मुझे नंबर सीक्वेंस दिखाई देता है, और उस नंबर सीक्वेंस में मेरे लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं, जैसे 555 दिख जाता है, 4 times 111 दिख जाता है, 222 दिख जाता है, 1212 दिख जाता है। तो अगर आपको लगातार ये नंबर सीरीज दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। दिस इज एन ऑसम साइन ऑफ यूनिवर्स टेलिंग यू दैट यू आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ. So whenever you see such numbers in series, a spark of joy lights you up. Notice the thoughts that come to your mind once you see such series, because they often bring you the guidance you recently sought. थर्ड साइन आता है कि यू आर विलिंग टू फॉरगिव. मेरा एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि फॉरगिव करना बहुत इजी है, आप लोग कैसे फॉरगिव कर सकते हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग साइन इज दैट कि आप माफ करने का आपके अंदर क्षमता हो जाती है. You start forgiving people and start to feel more compassionate towards those who may have hurt you in the past. Once you are in synchronized with the free spirit, you begin to forgive people who have ever done any wrong to you. You also start to pardon yourself for your past mistakes. Also, you easily ask for forgiveness from people physically or energetically for your misconduct to them. You let go of the clutter and guilt of the past and readily move forward a better tomorrow. Most importantly, you are comfortable with your present. आप अपने प्रेजेंट में जीना आपको बहुत अच्छा लगता है. आप अपने पास्ट में नहीं रहते हो. आपने पास्ट में जो गलतियां की होती हैं उससे सीखते हो और उस पास्ट को भूल जाते हो और लोगों को माफ करना सीख लेते हो. And fourth sign is that you lose the grip of negative thoughts and you begin to see the brighter side of everything. Your focus shifts to the solution of the question you have in your mind. You may not be afraid to try anything new, although you may feel the jolts of negative vibes sometime, but you will overshadow all the pessimism yourself. You will get these unsupported thoughts, and even if you get them, you will overcome them easily. मतलब आप नेगेटिव थॉट अपने पास आने ही नहीं देते हो. अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप उसको एकदम हटा देते हो एंड आप कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट करते हो जिससे आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आए. मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो, मोटिवेशनल कोट सुनते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले. तो आप नेगेटिव थिंकिंग से एकदम दूर होते जाते हो, खत्म कर देते हो नेगेटिविटी को एकदम अपने आप से. फिफ्थ साइन है यू विश टू एक्सपैंड योर लाइट. Since you are spiritually aligned, you wish to expand the light within you to the world. You do not wish to keep your secrets to yourself any longer. Rather, you desire to share your success with the tribes in need. You prefer everybody to learn from your experience. You want to contribute your fair share to the world. The biggest plus, you are not afraid to share any longer. आप अगर स्पिरिचुअल होते हो, स्पिरिचुअलिटी में अलाइनमेंट आपकी अगर होने लगती है, तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करते हो. लाइक आई एम शेयरिंग द वीडियोस टू यू. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो भी मेरे वीडियो में मैं बताती हूँ, सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, तो मैं उस चीज से शेयर करती हूँ, अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ. आई टीच रेकी, सो जो रेकी विद्या मेरे पास है मैं उसको शेयर करती हूँ, मैं दूसरों को सिखाती हूँ. तो जब आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हो, आपके पास जो स्पिरिचुअलिटी की गिफ्ट्स है वो आप दूसरों में उसकी नॉलेज देने लगते हो. सिक्स्थ आता है यू नीड लाइक माइंडेड पीपल. अब मान लो यूनिवर्स ने हम सबको अलाइनमेंट में रख दिया है, तो हम
एक ही ट्राइब के लोगों से मिलते रहते हैं। जब हम हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो हमारी ही तरह जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले लोग होते हैं, वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं, वही हमसे मिलते हैं। All those relationships that are not working for you may start to gradually disappear. ये मैं हर बारी आप लोगों को बोलती हूँ, not physically but energetically also. You will come in the acquaintance of folks who are like you, talk like you, and see the world like you. Such people will share the common view of life with you and will give you a chance to grow further on your spiritual expedition. Also, you will be inclined naturally to such people who are like minded and who shall help you build a wider spiritual network. मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे बन गए हैं, एक मेरा पूरा ग्रुप बन गया है। ऑलमोस्ट मेरे पास जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ऑलमोस्ट 50-60 फ्रेंड्स मेरे हीलर हैं, या तो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, या साइकिक हैं, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बुद्धिज़्म में हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं, और मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं ऐसे मिल गए, अननोन लोग जिनसे मैं आज तक मिली नहीं हूँ। फेसबुक के थ्रू मेरी बात हुई है, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मेरी बात हुई है, मैंने जिनका वीडियो सब्सक्राइब किया मैंने उनसे कांटेक्ट किया, किसी ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब किया उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। इस तरह चेन बनती जाती है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे बन गए हैं जिनसे मैं आज तक जिनकी शक्ल भी नहीं देखी है मैंने, फोन पे हम फ्रेंड्स हैं, एंड वी बोथ आर स्पिरिचुअली अलाइंड। सो बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी तब मेरे पास ऐसे लोग टकराते गए मुझसे। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो रांची में रहती है। मेरी एक और फ्रेंड है, वो शिमला में रहती हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। मुझे एक मेंटर मिली जिनसे मैंने मनी रेकी सीखी, जिनसे मैंने एंजल थेरेपी सीखी, जिनसे मैंने मैग्नीफाइड हीलिंग सीखा। मैं आज तक उनसे नहीं मिली हूँ, मैंने उनको देखा ही नहीं है, जस्ट उनको फोटो में देखा है, वीडियोस में देखा है। वो नेपाल में रहती है। तो बहुत सारे ऐसे हमें कनेक्शन मिलते रहते हैं जो हमारी ही तरह स्पिरिचुअल अलाइंड होते हैं। तो आपको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। सेवेंथ होता है, सेवेंथ है हमारा, योर डिवाइन पर्पस बिकम्स योर प्रायोरिटी। हाउएवर दिस चेंज may appear even at the earliest phase of your spiritual journey, and for some it may take more time, but spiritual alignment leads you to take over all your desire and live your life for your divine purpose. But there is nothing to fear about this change. Once you will reach that phase in your life, your divine purpose becomes your highest priority. You will easily let go of all other worldly desire. You become detached with the results in whatever that you do. Whatever you choose to do on this plane is for the sake of your life purpose, or we shall say for God. आपको अपना life purpose मिल जाता है. Like I found my life purpose. पहले मैंने जब रेकी सीखना स्टार्ट किया था, मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करती थी। मैंने MBA किया है, और MBA इंसान क्यों करता है? यही सोच के करता है ना कि वो MNCs में जॉब करेगा, अच्छी बहुत ज़्यादा अर्निंग करेगा, बहुत अच्छा उसका लेविश लाइफस्टाइल रहेगा। लोग इसीलिए MBA करते हैं। मैंने भी MBA किया। मैंने तब रेकी सीखी ही नहीं थी, मेरा दूर दूर तक रेकी से कोई कनेक्शन नहीं था। अब मैंने सोचा ही नहीं था स्पिरिचुअल, मुझे स्पिरिचुअलिटी क्या होती है मुझे पता ही नहीं था। ये 2008 में मैंने MBA किया, 2010 में मैंने MBA पास आउट किया, और 2010 में ही मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। 2010 में मेरी लाइफ में रेकी आई। मैंने रेकी सीखती गई और अपना जॉब भी करती गई। मैंने रेकी को एज ए प्रोफेशन कभी सोचा ही नहीं था। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है डीप में कभी मैंने जाने की कोशिश ही नहीं की थी। पर पता नहीं धीरे धीरे क्या होता गया कि मेरी लाइफ में और कुछ रह ही नहीं गया। मेरी लाइफ में सिर्फ रेकी रह गई, और अब मुझे अपना मेरा लाइफ पर्पस समझ में आया कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो स्पिरिचुअलिटी में डीप नॉलेज मुझे मिली है, जो मैं अलाइन हो रही हूँ यूनिवर्स के साथ, मैं लोगों को भी अपलिफ्ट करूँ, ह्यूमैनिटी को भी अपलिफ्ट करूँ, और मदर अर्थ को भी अपलिफ्ट करूँ। तो अब मैंने रेकी को अपना एज ए प्रोफेशन बनाया। रेकी के साथ साथ मैंने बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज भी सीखी, और इसको मैंने अपना लाइफ पर्पस बना लिया। मैं रेकी सिखाती हूँ, रेकी से लोगों को हील भी करती हूँ। तो दिस इज माय लाइफ पर्पस। तो जैसे जैसे आप
आपकी सोल इवॉल्व होती रहेगी, मैच्योर होती रहेगी, आपको अपना लाइफ पर्पस समझ में आएगा. एंड दीज आर द मोस्ट डेफिनेट साइंस दैट यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअली अलाइव and getting in the perfect sync with the universe. There are many more signs like these, and some of you may have already discovered them. So sign of alignment become very frequent once you embrace the new side of you, or say the new you. The good part is that there is no end to such happenings. The signs and symbols are not limited to the extent of this video only, but may reach beyond it. सो अगर ये साइंस आपको धीरे 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 अपनी लाइफ में दिखने लगेंगे, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, मुझसे रेकी सीखनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है. थैंक यू सो मच. कीप अप्रिशिएटिंग मी एंड कीप वॉच माय वीडियोस. थैंक यू.